الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. تو آج کا ٹاپک ہے توکل. اس میں چھوٹا کاف ہے کے یوز ہوتا ہے. توکل، ٹرسٹ. تو ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم کیا کرتے ہیں، بیسیکلی بھروسہ جس کو بولتے ہیں. ٹرسٹ، بھروسہ، توکل یا کسی کے اوپر ریلائی کرنا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو حوالے کرنا، خود کو حوالے کر دینا. ٹھیک. یا پھر کسی دوسرے پر بھروسہ کر لینا، اعتماد کر لینا، توکل ہوتا ہے اس کا مطلب. ٹھیک. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اپنی زندگی کے جتنے بھی ہمارے واقعات ہوتے ہیں، جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ کیا ہوتے ہیں، سچویشن ہوتی ہے یعنی کہ جس میں ہمیں فیصلہ لینا ہوتا ہے، ایسا وقت جہاں ایسی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں کہ جن کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے نا. تو اس کے اوپر ہم کس پر بھروسہ کریں؟ مصیبت تو آنی آنی ہے. کہیں نہ کہیں ہم بھروسہ توکل کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر آگے اس کے بارے میں بات کریں گے تو توکل بیسیکلی کسے کہتے ہیں؟ خود کو حوالے کر دینا یا پھر کسی دوسرے پر اعتماد کرنا. ٹھیک. توکل کے معنی ہے کسی دوسرے پر اعتماد کرنا. لیکن توکل علی اللہ یعنی کہ توکل علی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی پر بھروسہ. تو ہمیں دنیا پر توکل کرنا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالی پر کرنا ہے، یہ ہم دیکھ لیں گے آج کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ مجھ پر توکل کرو تو میں تمہیں اس طرح سے ادا کروں گا. اور ایک انسان جو ہے اس کے اوپر اگر آپ بھروسہ کریں گے تو بے شک آپ کو خود ایک انسان کو خود کو ایسا بنانا چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس پر بھروسہ کر سکے. اور کیا ہے کہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہ کریں. ہمیں خود کو تو اس طریقے کا بنانا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل، اس کو بولتے ہیں توکل علی اللہ. ڈیفینیشن کیا ہے توکل کی؟ ڈیفینیشن کیا ہے توکل علی اللہ کی ڈیفینیشن؟ توکل از بیسیکلی دا ٹرسٹ اینڈ ریلائنس ان اللہ، یعنی کہ خود کو کیا کر دینا؟ اللہ کے حوالے کر دینا. اللہ کے حوالے کس طرح کریں گے وہ بھی جانیں گے. ریلائنس کرنا یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی جو ہے کیا رہنا؟ اعتماد رہنا. پھر اس کے علاوہ دیٹ از ایکسپٹنگ دا ریزلٹ، یعنی کہ جو بھی ریزلٹ ہوگا اس کو ایکسپٹ کر لینا. ٹھیک. دیٹ ہی ڈیسائڈ ریگارڈلیس آف ہاؤ دے may ٹرن آؤٹ ٹو بی. ٹھیک ہے. اس کو انشاءاللہ ابھی میں اردو میں بھی سمجھاؤں گی. توکل کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر انسان کو اپنی کوششوں کے نتیجوں کو، جو رزلٹ ہے اسے اللہ کے سپرد کر دینا. اپنے واقعات کے جو ان کے ساتھ واقعے گزرتے ہیں، اپنے واقعات کے فیصلوں کو اللہ کے سپرد کر دینا. یہ سوچے بنا کہ اس کا جو ہے فیصلہ کیا ہوگا، اس کا فیصلہ نیگیٹو آنا چاہیے یا پازیٹیو آنا چاہیے، یا اس کا فیصلہ اتنا 20% ہوگا یا 80% ہوگا یا 60% ہوگا. توکل کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی کوششیں کے نتیجے کو، اپنے واقعات کے فیصلوں کو، جو اینڈ ریزلٹ جو ہے اس کو کیا کر دینا؟ اللہ کے سپرد کر دینا. اب کوشش ہم کس کس چیز کی کرتے ہیں دنیا میں؟ تعلیم پانے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تجارت یعنی کہ بزنس لوگ کرتے ہیں، ہے نا، کمانے کے لیے، حلال روزی کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے. کئی بہنیں میری جو ہے ماشاءاللہ سے کیا کرتی ہیں؟ پڑھائی کر رہی ہیں، کسی ایک اچھے مقام پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دنیا ان کی مثال قائم کرے. کوشش. لیکن اس کا جو نتیجہ ہے ان سب کوششوں کے نتیجے یعنی کہ اینڈ ریزلٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ خود کو کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اور وہ کیسے کریں گے؟ واقعات کے بارے میں. واقعات کیسے ہو گئے؟ زندگی میں کچھ بھی ہوتا ہے، کسی پر بیماری آئے، ہارٹ اٹیک آئے، مسئلے آئے، پریشانی آئے، تنگ دستی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، تو یہ سب چیزیں جب آ گئی
उसका फ़ैसला कौन करेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये तमाम कोशिशों का और तमाम वाक़यातों का फ़ैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है और अल्लाह के इल्म में है, क्योंकि एक पत्ता भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता है और उसी के हाथ में है हर फ़ैसला और उसी की तरफ से है। मान लीजिए अगर कोई वाक़या जो है क्या हो गया, घट गया हमारे साथ, या फिर जो है कोई वाक़या सामने आ गया, मान लीजिए किसी की मौत, किसी को हार्ट अटैक, तो ज़्यादातर हम क्यों है ना कमज़ोर? अब हम ये देखते हैं कि हम लोग क्यों कमज़ोर हैं और किस तरीके से जो है तवक्कुल हमारी मदद करेगा, ये क्या बनने में, स्ट्रॉन्ग बनने में। कमज़ोर हम क्यों हैं? कि हम कोशिश करते हैं, कोई चीज़ हमने कोशिश की, फिर हम नाकामयाब हो गए उस चीज़ में। नाकामयाब होने के बाद क्या होता है कि इंसान अपनी जान लेने लगता है। जान लेने लगता है, अगर खुद ने कोशिश की और फिर उस चीज़ में नाकामयाब हो गए, तो इंसान अपनी जान लेने पे तुल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि कोशिश का नतीजा वही आना चाहिए था जैसा उसने सोच के रखा था। जबकि तवक्कुल किसे बोलते हैं कि जो एंड रिजल्ट है, जो रिजल्ट है, एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स। किसको? जो रिजल्ट है जैसा भी आया उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस को तवक्कुल बोलते हैं। ठीक है? तो इंसान ने जान क्यों ले ली अपनी? क्योंकि उनको लगता था कि कोशिशों का नतीजा वही होना चाहिए जैसी उसने कोशिश की। देखिए, नतीजा जो नतीजे पर ही, नतीजे को ही एक्सेप्ट करना, नतीजे को ही कबूल करना, नतीजे को ही समझना, जो एंड रिजल्ट है उसी को तवक्कुल कहा गया है। हमने पूरी कोशिश की, अब वो ज़्यादा नतीजा भी हो सकता है, वो नतीजा कम भी हो सकता है, वो नतीजा उस कोशिश के इक्वल भी हो सकता है और वो नतीजा बिल्कुल भी उस कोशिश के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारा काम क्या है? अगर हम तवक्कुल वाले बने तो जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना सीखे। ठीक, इसीलिए आजकल तवक्कुल की कमी है। देखिए, पहली चीज तो ये होती है, अगर हमने कोशिश की और नतीजा वो नहीं निकला जो हम सोच रहे थे, तो हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं और क्या करते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म में पड़ जाते हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि आप खुद के बारे में भी गलत मत सोचो, क्योंकि हर किसी को मैंने बनाया है और हर कोई उतना ही कर पाता है जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे उससे करारा। इसी तरीके से अगर जो है दूसरे की वजह से वो कोशिश आपकी नाकामयाब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, ब्लेम करने लगते हैं। तो क्या होगा, हम नफरत करेंगे, उससे बुरा कहेंगे, उससे क्या करेंगे, उससे उससे कहेंगे कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, काम तो मैं इतना अच्छा करने वाला था, लेकिन मेरा सारा काम बिगाड़ दिया इस इंसान ने। और फिर क्या होगा, हमारे दिल में जो है क्या पड़ जाएगी, फूट पड़ जाएगी, उस इंसान के लिए नफरत पैदा हो जाएगी, हम उसको शायद जो है नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करें। तो अगर तवक्कुल नहीं है तो देखो क्या क्या हो रहा है, खुद को भी नुकसान और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाकर खुद जालिमों में भी जो है हम कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अगर तवक्कुल नहीं है, तवक्कुल है और तवक्कुल का सही मतलब भी नहीं पता है, तो क्या हो रहा है, दोनों लोगों को नुकसान हो रहा है, आपके सामने वाले को भी और आपको खुद को भी नुकसान हो रहा है। आप खुद को भी बुरा भला बोल रहे हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, या मैं किसी लायक नहीं थी, या मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, और अपने आप को भी बुरा बोल रहे हैं और सामने वाले को भी बुरा बोल रहे हैं कि इसकी वजह से सारी चीजें हुई हैं। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, जो फैसले का क्या है, आखिरी जो वो है, ठीक, आखिरी जो है रिजल्ट है, उसको क्या करना, एक्सेप्ट करने को ही तवक्कुल कहते हैं। अब देखिए, मोमिन क्या करता है, ये तो जिनमें तवक्कुल की कमी होती है उन लोगों के बारे में बात हुई। ठीक, यानी कि जो कमी है हमारे अंदर के तवक्कुल की कमी, उन लोग, जो मोमिन होता है वो अल्लाह पर भरोसा करता है हर काम के लिए, हर रिजल्ट के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है हर रिजल्ट। अब मान लीजिए किसी ने जो है एग्जाम दिया और बहुत अच्छा एग्जाम दिया, ठीक है, उसने कोशिश भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पोजीशन नहीं बनी। फिर क्या हुआ, उस इंसान ने क्या किया, अगर वो कमी वालों में से होगा तो वो क्या कहेगा कि या तो खुद को कहेगा कि मैं लायक नहीं हूँ, या पेपर ऐसा बना था, या तो दूसरे को कहेगा या फिर खुद को कहेगा। ठीक, लेकिन जो मोमिन होता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करता है और कहता है कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई ना कोई कदर होगी। इसी तरीके से मोमिन का क्या है, मोमिन का ये मानना है कि जो हुआ उसमें भी खैर था, जो नहीं हुआ उसमें भी खैर था, अल्लाह ने जो बेहतर चाहा वो किया। एक मोमिन क्या होता है, पूरी तरीके से जो है तवक्कुल करता है। अब सिचुएशन चाहे उसके लिए सुटेबल थी,
सूटेबल सिचुएशन में भी क्या होगा, अगर नेगेटिव जो है क्या निकल गया, रिजल्ट निकल गया, तो भी वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है। और अगर क्या होगा, अनसूटेबल कंडीशन होगी जो कि उसे पसंदीदा क्या हो, उसका माहौल नहीं होगा, फिर भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकल गया तो वो भी क्या होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही होता है। देखा है कभी क्या होता है, पढ़ाई नहीं की होती है और एग्जाम देने ऐसे ही चले गए होते हैं, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के, और इस 2 चैप्टर से ही जो है आ जाती हैं चीजें, तो तब तो हम बहुत खुश होते हैं ना। तो वही तो है तवक्कुल, कि वो 2 पढ़कर और आप चले गए कि अल्लाह इस बार बचा लीजिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए जैसा सोचता है मैं वैसा ही हूँ उसके लिए। किसी भी चीज का एंड रिजल्ट पर अल्लाह का कंट्रोल है। तो लिहाजा जब भी कोई ऐसी चीज आए, अपने दिल को छोटा ना करें, अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवक्कुल के रेफरेंस में क्या फरमाते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं इंशाल्लाह। सूरह आले इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तो कैसी कुछ अल्लाह की मेहरबानी है कि ए महबूब तुम उनके लिए नर्म दिल हुए, और अगर तंद मिजाज सख्त दिल होते, तंग मिजाज और सख्त दिल होते, तो वो जरूर तुम्हारी गिरद से परेशान हो जाते। तो तुम उन्हें मुआफ फरमाओ और उनकी शफात करो और कामों में उनसे मशवरा लो। बेसिकली ये आयत जो है यहाँ से देखनी है कि तो कैसी कुछ अल्लाह की मेहरबानी है, ए महबूब तुमने उनके लिए नर्म दिल हो गए। तो यहाँ पर नर्म दिल की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है और कामों में उनसे मशवरा ले। हालांकि जो नबी होते हैं उनको वही आती है, और वही जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई भी चीज़ आती है तो क्या उसमें मशवरा लेने की ज़रूरत है? नहीं। लेकिन ये जो आयत है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताने के लिए ये आयत है कि आगे जो है कभी भी उनको कोई भी काम करना हो तो क्या करें, मशवरा लें। सहाबा को ये चीज़ बताई गई, हमें ये चीज़ बताई गई कि हम क्या करें, मशवरा लें पहले कोई भी काम करने के लिए। तो क्या करना है, और मशवरा करना है। मशवरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो किसी बात का इरादा पक्का कर लो, जो किसी बात का इरादा पक्का कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। बेशक तवक्कुल वाले अल्लाह को प्यारे हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। अब बेसिकली इसके अंदर जो है, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक सिचुएशन ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अपना बिज़नेस जो है क्या करने वाला है, शुरू करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया, देखिए तवक्कुल का गलत मीनिंग भी लोग ले लेते हैं कि घर में बैठे हैं, रोजी कहाँ है, अल्लाह पर तवक्कुल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला देंगे, नहीं। कोशिश ज़रूरी है, इसी तरीके से दुआओं में भी ये था कि ज़ाहिरी असबाब ज़रूरी हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रूरी हैं और फिर दुआ ज़रूरी है। बीमारी में भी ये था कि दवा भी ज़रूरी है और दुआ भी ज़रूरी है। इसीलिए तो दीन भी ज़रूरी है और दुनिया भी ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ़ जो है हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाइए। तो तवक्कुल में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि अगर तुम किसी चीज़ को डिसाइड कर रहे हो तो भरोसा मुझ पर रखो, लेकिन मशवरा लो पहले। अब फॉर एग्जाम्पल के 4 लोगों में से 3 लोगों ने आपको ऐसी चीज बताई है जो कि आपको लगती है कि फायदेमंद है, तो बस उस चीज को डिसाइड कर लो, पहले मशवरा लो, फिर उस चीज पर जब आपका इरादा पक्का हो जाए कि ये 3 लोग ही जो है सही बात बोल रहे हैं, उसका इरादा पक्का कर लो, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा कर लो। और क्या बोलो कि या अल्लाह मेरे दिमाग में जितनी बात आती है ये ठीक है, जो मैं अपनी अकल से समझती हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक तवक्कुल करने वालों को क्या है, को प्यार करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करता है उनसे जो तवक्कुल करते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज है कि आपने अगर मशवरा कर लिया, फिर आपको क्या करना है, एक ही चीज पर अड़े रहना है। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक चीज पर अड़े रहने का मतलब ये हो गया कि बस अब यही सोचा था तो यही होगा। बेसिकली इसके अंदर बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ट्रस्ट करने की, कि अगर आपने एक चीज चुनी है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ट्रस्ट करके चुनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको राइट रास्ता बताया तो आप उस राइट रास्ते पर अपनी सूझबूझ से गए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि अल्लाह मैं तवक्कुल करता हूँ आप पर और मैं राइट पर चल रहा हूँ। ठीक, अब मान लीजिए आपको क्या हुआ, रास्ते पे 5 कदम चलने पे क्या हुआ, चीजें सही नहीं लग रही हैं, तो फिर आप लेफ्ट पकड़ ले, नहीं,
ये नहीं करना है। जब आपने अल्लाह पर फिर तो भरोसा ही नहीं है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। ये नहीं करना, जब एक बार मशवरा लो फिर क्या करो, कोई भी चीज़ का इरादा कर लो, और इरादा कर लो तो क्या है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पूरी तरीके से भरोसा कर लो। तो क्या कैसे चलना है, उसी तरीके से चलते रहना है, दूसरा रास्ता नहीं चुनना फिर। फिर जब एक बार हो गया, उसके बाद अल्लाह तवक्कुल उसी चीज़ को कहते हैं कि कुछ भी हो, तवक्कुल का मतलब क्या है कि सामने पानी भी था, मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ी ना पता था कि वो फट जाएगा, दरिया जो है वो 2 हिस्सों में फट जाएगा, नहीं पता था ना। तवक्कुल का मतलब यही है कि बस जो भी हो चलते रहो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो कर देंगे सारी चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरीके से जंग के मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया और कहा, और अगर वो सुलह की तरफ झुके तो तुम भी झुको और अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक वही है सुनता जानता। और अगर वो तुम्हें फ़रेब दिया चाहे, अगर वो फ़रेब देना चाहे, तो बेशक अल्लाह तुम्हें काफ़ी है, वही है जिसने तुम्हें ज़ोर दिया अपनी मदद का और मुसलमानों का। बेसिकली इसके अंदर क्या बात हो रही है, यहाँ पर एक जंग के मैदान के लिए तवक्कुल की बात हो रही है। कैसे कि जंग में अगर कोई भी जो है आपसे सुलह करना चाहे, तो अल्लाह ने कहा है कि आप सुलह कर लीजिए। इस डर से मत रहिए कि वो दोबारा से धोखा तो नहीं दे देगा। बस आप इस बात से सुलह कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, तो आपने सुलह कर ली। और सुलह कर ली है जब, तो अल्लाह ने क्या कहा दूसरी आयत में, आयत नंबर 62 में, और अगर तुम्हें फ़रेब दिया जाता है, अगर वो फ़रेब देंगे तुमको, तो बेशक अल्लाह तुम्हें काफ़ी है। तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। हालाँकि क्या कहा कि अगर कोई अमन पीस कायम करता है, तो आप भी पीस कायम करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, यानी कि खुद को हवाले कर दिया अब आपने अल्लाह के, कि अल्लाह ने ये कहा पीस कायम करनी है तो करनी है बस अब। बस हो गया अभी। और कहा कि अगर मान लीजिए उसके बाद वो अगर आपको फ़रेब देंगे, धोखा देंगे, तो मैं काफ़ी हूँ फिर उनके लिए। फिर मैं देखता हूँ उनको। यानी कि हमने क्या किया, यो तवक्कुल का मतलब क्या है? किसी दूसरे पर एतमाद करना, किसी दूसरे पर ट्रस्ट करना। तवक्कुल अल्लाह का मतलब क्या है कि किसी दूसरे पर ट्रस्ट करना, किसी अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ट्रस्ट करना। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए इसको, अगर जो रियल लाइफ़ है उसकी सिचुएशन में देखें, तो आप कोई एग्ज़ाम देने गए और वहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन थे, और पहले ही क्वेश्चन में जो है आपका टीचर आकर बोल दे कि बस अब रहने दो। टेस्ट हो गया पूरा, ठीक? तो आप रुक गए वहाँ पर कि चलो टीचर बोल रहा है तो आप रुक गए। लेकिन उसके बाद वो क्या करे, आपको कम नंबर दे दे, और 2, और कहे कि आपने तो एक ही क्वेश्चन किया है, 2 नहीं किए। तो वहाँ पर आपका ट्रस्ट टूट गया ना कि अरे आप ही ने तो कहा था कि मैंने एक क्वेश्चन करना है, इसलिए मैंने 2 नहीं किए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस जगह के लिए कहा कि अगर उसने धोखा दिया और कुछ किया, तो वहाँ मैं काफ़ी हूँ उसके लिए। अगर कोई धोखा देता है तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी, क्योंकि तुमने भरोसा किस पर किया? मान लीजिए एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि मैं आपको जो है पूरे 100 मार्क्स दिलाऊँगा। आप गए, आपने आधा पेपर किया, क्यों? क्योंकि वो जो टीचर था, जो नॉर्मल फैकल्टी था, वो चाहता था कि आपके कम मार्क्स आएँ। लेकिन आपको तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है कि मैं आपको 100 मार्क्स दूँगा। तो मान लीजिए अगर वो छल-कपट भी करता है आपके साथ, वो धोखाधड़ी भी करता है आपके साथ, तो क्या होगा? एचओडी ने तो बोला है कि वो 100 मार्क्स देगा। तो इसको तवक्कुल कहते हैं, यानी कि अपना भरोसा किसी और पे रख देना। अपना भरोसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर रख देना कि जो अल्लाह ने कहा है वो करना है, बस। तो देखिए जंग के लिए यहाँ पर, जबकि जंग में तो किसी का भरोसा ही नहीं किया जाता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां भी कहा कि अगर फिर से उन्होंने धोखाधड़ी की, तो मैं काफी हूँ उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सोचो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बोल रहे हैं बहनों, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज हैं, ये उनका कलाम है, ये हमसे बोल रहे हैं कि कोई धोखाधड़ी करेगा, मैं देखूंगा फिर। तुमको जरूरत नहीं है, तुम बस मुझ पे भरोसा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 57 पढ़ेंगे। सूरह अल फुरकान आयत नंबर क्यों, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी कहा कि बेसिकली हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर क्यों ना करें भरोसा, ठीक? इसके बारे में बात करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी अंबियाओं को भी तवक्कुल करने के लिए कहा। और क्यों ना कहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला? क्योंकि वो है जो हमेशा जिंदा रहने वाला है।
है ना? अल-हय्युल क़य्यूम है वो, हमेशा कायम रहने वाला है, हर चीज़ की खबर रखने वाला है। ऐसी ऐसी ज़ात पर क्यों ना भरोसा करे इंसान जिसको मौत नहीं आती और जिसको ऊँघ भी नहीं आती है ना? ऊँघ भी नहीं आती है। अल्लाह जो है इस बात को सूरह अल फुरक़ान में बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं? और भरोसा करो उस ज़िंदा पर जो कभी ना मरेगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद कहा, उस पर भरोसा करो, उस पर तवक्कुल करो, उसके हवाले करो खुद को जो कभी क्या है उस जिंदा पर जो कभी ना मरेगा, और उससे सराहते हुए उसकी पाकी बोलो, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना बयान करो, और वही काफी है अपने बंदों के गुनाहों पर खबरदार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि वही काफी है और वही जिंदा रहने वाला है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो हम इस तरीके से लेंगे कि कोई इंसान है, मैंने उससे कहा कि मेरा इंटरव्यू है और अगर मुझे इंटरव्यू में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो भाई प्लीज फोन उठा लीजिएगा, है ना? लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो इंसान को जब उस इंसान की जब मुझे ज़रूरत पड़ी, तो उस इंसान ने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसने कहा मैं सो गया, उसने कहा कि अरे मेरी आँख लग गई थी, या उसने क्या कहा कि मान लीजिए उसकी मौत ही हो गई। तो अल्लाह ने क्या कहा, मुझ पे भरोसा करो, क्यों? क्योंकि वो ज़िंदा है, वो कभी मरेगा नहीं, उसे कभी ऊँघ नहीं आती, और वो क्या है, हाकिम है, उसे हर चीज़ का जो है क्या है, खबर है, और वो क्या है, वो कादिर है, वो हर चीज़ का कैपेबल है, वो हर चीज़ पर कादिर है। तो मान लीजिए जिस इंसान से आप माँगने गए थे क्या? मदद माँगने गए थे कि आप बस भाई मेरा फ़ोन उठा लीजिएगा, और वो फ़ोन नहीं उठा पाया, क्यों? क्योंकि उसकी आँख लग गई, क्योंकि वो सो गया, खुदा ना ख़ास्ता क्या हुआ, उसकी मौत आ गई, वो वहाँ उठा ही नहीं पाएगा। तो अल्लाह ने क्या कहा, मुझ पे भरोसा करो, और मुझ पर क्यों ना भरोसा करो? क्योंकि ना वो मरने वाला है ना? ना उसे ऊँघ आती है, ना उसको जो है नींद आती है, हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ कर सकता है। हालाँकि जो कमरे में बैठा हुआ इंसान है, जिस पर आप भरोसा करके गए हैं कॉल करने के लिए, उसको एक बार को नहीं पता होगा किस चीज़ का, कि आपके साथ इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन, किस टाइम, कैसे पूछा जा रहा है, या आपका क्या एग्ज़ाम में कौन-सा क्वेश्चन, या आपकी पेन किस तरीके से चल रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो ये भी पता है कि जो पेन की निब के अंदर जो बॉल होती है, वो किस तरफ घूम रही है। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह ने क्या कहा कि मुझ पर भरोसा करो, और क्यों ना करो? और भरोसा करो उस जिंदा पर जो कभी न मरेगा, और उसे सराहते रहो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना बयान करते रहो, और वही काफी है। ही इज सफिशिएंट बहनों, वही काफी है, जरूरत नहीं है किसी और। लोगों पे क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, टूटता है ना भरोसा। अल्लाह ने क्या कहा, मैं अपने वादों का सच्चा हूँ, मैं कभी वादा नहीं तोड़ता। अब आप देख लीजिए, जो इंसान खुद से बोल रहा है कि मैं अपने वादों का सच्चा हूँ, कल को वो तोड़ता हुआ नजर आ जाता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी अपने वादे नहीं तोड़ता बहनों। तो हम क्यों ना ऐसी ऐसी जो है किस पर भरोसा करें, ऐसी ज़ात पर भरोसा करें जो खुद बोल रहा है कि उसको तो ऊँघ भी नहीं आती है कभी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को देखने वाला है। तो अल्लाह ने कहा कि मुझी पर सिर्फ भरोसा करो। तो हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ही तवक्कुल रखना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबियाओं के लिए कहा, अंबियाओं में किसको, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 71 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बताते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का भी किस्सा बता दूं। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी और कोई ईमान नहीं लेकर आया था। बहुत कम गिने चुने लोग थे जो कि ईमान लेकर आए थे, और ज्यादातर उनके मानने वालों में से कौन थे, जो कम दर्जे वाले लोग थे, यानी कि जो गरीब गुरबा थे, और मालदार लोग जो थे उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे उसमें देखो कौन, यहाँ तक कि उनका अपना बेटा भी जो है ईमान नहीं लेकर आया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते हैं कि और उन्हें नूह की खबर पढ़कर सुनाओ, जब उसने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अगर तुम पर शाख गुजरा है, मेरा खड़ा होना और अल्लाह की निशानियां याद दिलाना, तो मैंने अल्लाह ही पर भरोसा, तो मिलकर काम करो और अपने झूठे माबूदों समेत अपना काम पुकार पक्का कर लो। तुम्हारे काम में तुम पर कुछ क्या है, अ, गंजलक ना रहे, फिर जो हो सके मेरा काम, मतलब तुम्हारे काम में कोई भी ऐसी कमी वगैरह ना रह जाए, फिर जो हो सके मेरा
कर लो और मुझे जो है कि मोहलत ना दो। तो यहाँ नूह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि जो लोग उनका मज़ाक उड़ाते थे, उनसे कहा जा रहा है कि तुमको जो करना है तुम कर लो। तुमको जो करना है तुम कर लो। मेरा भरोसा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे है। मुझे बचाने वाला सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तुम अपने आप को मज़बूत कर लो, अपने माबूदों को मज़बूत कर लो, जिनको तुमने जिनको तुमने शरीक किया तुम उनको भी मज़बूत कर लो, है ना? शरीकों को मज़बूत कर लो। जो तुम मेरे खिलाफ़ बोलते हो कि ये माबूद है, उनको भी तुम खड़ा कर लो। कि ये मुझे ख़त्म कर देंगे। और फिर क्या है, पूरी कौम को जो है चैलेंज किया बेसिकली, और कहा मेरा भरोसा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर है। फिर लोगों ने कहा बहुत बड़ी-बड़ी बातें तुम कर रहे हो, जब लोगों को डरा रहे थे, लोगों ने क्या किया, फिर उनको डराने लगे कि हमारे माबूद जो है आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इतनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करो। सेम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, है ना? उसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने भी यही कहा किया था कि उनको जो है अपने माबूदों से, जिनको वो क्या करते थे, जिनकी इबादत करते थे, उनसे डराते थे। तो अल्लाह ने इस वाक़ये को फिर सूरह हुद आयत नंबर 54 और 56 में जो है बयान किया। क्या कहा? हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी खुदा की तुम्हें बुरी झपट पहुँचे। अब ये नूह अलैहिस्सलाम की क्या बोल रही है? कौम उनसे बोल रही है कि हमारे कोई खुदा जो है झपट ले तुमको आकर। कहा मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम सब गवाह हो जाओ कि मैं बेज़ार हूँ उन सब से जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा उसका शरीक ठहराते हो। यानी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उन सब से बेज़ार हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या है? यहाँ देखा जाए तो यहाँ पूरी कौम की बात हो रही है बहनों, यहाँ पूरी कौम की बात हो रही है। और आज क्या है? तवक्कुल है ही नहीं। कोई भी चीज़ ज़रा-सी भी गलत हो जाती है तो क्या करते हैं, इसको ब्लेम कर दो, उसको ब्लेम कर दो, ठीक है? कोई मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं, रोने बैठ जाते हैं कि शायद मैं ही नहीं हूँ इस लायक कि कोई मुझ पर जो है यकीन ना कर पाए। क्या हो रहा है यहाँ पर कि चैलेंज कर रहे हैं, पूरी कौम को चैलेंज कर रहे हैं कि तुमसे जो हो सकता है तुम कर लो। लेकिन मुझे पता है मैं सच्चाई पर हूँ, मैं हक पर हूँ, कोई यकीन नहीं करता है आज की दुनिया में हमारा। कोई क्या करता है, कोई बोल देता है किसी भी चीज़ के लिए कि दिखावा करती है, कोई कुछ भी बोल देता है बहनों। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी कह देता है कि ये तो बस कमरे में जाओ तो तब देखो इसको, तो ये कैसी है। फिर उसके बाद कुछ भी लोग बोलते हैं ना, किसी पर तोहमत लगा दी, किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी को नापाक करार दिया, किसी किसी के लिए कहा कि ये जो है ये तो गीबत में मशगूल है ना? और फिर हमें क्या लगता है, हमें उनकी बातों से हमें खौफ आता है, हमें क्या लगता है बस इनकी नज़रों में अच्छे हो जाएँ। यहाँ की तक कि नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं बेज़ार हूँ इन लोगों से जिनको तुम माबूद भी ठहराते हो। यानी कि क्योंकि मुझे पता है मेरा जो है तवक्कुल किस पर है, अल्लाह पर है। क्योंकि आपका जो है किस पर तवक्कुल होना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा। मैंने अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले कर दिया। एक तरीके से हवाले किसको बोलते हैं? हवाले करना बोलते हैं ना कि पुलिस ने उसको अपने हवाले कर दिया या फिर मैंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया बेसिकली। तो मान लीजिए पुलिस ने क्या किया, दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी, तो क्या आप कहीं भाग सकते हैं? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, आपको अपने उसमें ले लिया। तो ना आप अब मुँह से कुछ बोलें, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखें कि वो क्या करता है। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा रब है और तुम्हारा रब, कोई चलने वाला नहीं। तुम्हारा रब कोई चलने वाला नहीं, उससे कोई चाल-वाल नहीं चली जाएगी। जिसकी छोटी उसकी कब्ज़े कुदरत में ना हो, बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर मिलता है। तो यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का देखो सबके अगेंस्ट खड़े हैं। ये है ट्रस्ट, ये है भरोसा, ये है तवक्कुल। आज का तवक्कुल क्या है कि अगर 4 लोग जो हैं बैठ गए और हमारे खिलाफ बात कर दी, तो उनका भरोसा जीतने के लिए वो काम भी मैं कर दूँगी जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है। और नूह अलैहिस्सलाम का तवक्कुल कैसा था कि पूरी कौम के खिलाफ खड़े होके अकेले वो बोल रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मैं सच्चाई के साथ हूँ। अगर आज मुझे कोई ये कह दे कि कितनी नमाज़ें पढ़ती है और जो है इसके लिए तो दुनिया के लिए भी टाइम नहीं है, कितनी नमाज़ों में लगी रहती है, कितना ज़्यादा काम करती रहती है, हर चीज़ में हरिश्चंद्र बनी रहती है, सच्चाई की मूर्ति बनना है क्या? हर चीज़ में ये करना है क्या? और उस चीज़ को क्या करने के लिए मैं दूसरों का भरोसा पाने के लिए कि ताकि मुझे दूसरे भी बोलें कि मैं दुनिया में आ रही हूँ और उनका भरोसा जीतने के लिए मैं खुद को बदलना शुरू कर दूँ। तो वो तवक्कुल नहीं, मेरा तवक्कुल किस पर है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। मेरा यकीन किस पर है? आखिरत के दिन
यकीन पर, मेरा यकीन किस पर है कि मौत आएगी, मेरा यकीन किस पर है कि मौत कभी भी आ सकती है। तो मेरा तवक्कुल किस पर है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर है। तो मुझे फ़र्क नहीं कि दुनिया क्या बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं कि 1 लोग सामने खड़े हैं या हज़ार लोग सामने खड़े हैं। मैंने क्या करना है, जो अल्लाह मैंने खुद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द कर दिया, अपने काम को, अपने रिज़ल्ट्स को, हाँ, कोशिश करना मेरा काम है, कोशिश करना मेरा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जो है एक वाक़या बयान आता है, ये इब्न हिशाम की है, फिर उसके बाद ये सही बुखारी की इंशाल्लाह इसी के आगे का ये किस्सा है, फिर बयान करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकले। सारे काफिर जो हैं आपके खिलाफ खड़े हुए थे, रात का वक्त था। आपने अली इब्न तालिब से और तहज्जुद के बाद जो होता है ना, फजर, तहज्जुद के बाद फजर जब करीब होती है, वो वाला टाइम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न तालिब से कहा कि आप मेरी जगह सो जाओ, जो मेरे पास लोगों का सामान है वो लोगों को लौटा कर तुम वापस मदीने आ जाना, और मैं आगे जाता हूँ अबू बकर सिद्दीक के साथ। आगे निकले, काफिर इंतजार में थे और अल्लाह पर भरोसा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक भी काफिर ने आपको नहीं देखा। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा ऐसा था कि काफिर देख ही नहीं पाए बहनों। फिर जो है उसी के साथ में क्या आता है कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, ये सही बुखारी की हदीस है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैं गार सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मैंने काफिरों के पांव देखे जो हमारे सर पर खड़े हुए थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घबरा गए और बोले, या रसूल अल्लाह, अगर उनमें से किसी ने जरा भी कदम उठाए तो वो हमको देख लेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू क्या समझता है, उन दो आदमियों को कोई नुकसान पहुंचा सकेगा जिनके साथ तीसरा अल्लाह ताला हो? अब पता है सिचुएशन कैसी थी बहनों? हाँ, ये जो वाक़या है इसमें काफ़ी जो है ज़ईफ़ हदीसें भी थी। मतलब वो ज़ईफ़ हदीसों से उनका पता चलता है कि मकड़ी ने जाला बना दिया और कबूतर का घोंसला, लेकिन ये सही हदीस है, उससे जो है लिया गया है। तो गारे सूर में क्या हुआ था कि आप इमेजिन कीजिए कि वो जब गुफ़ा में थे तो ऊपर क्या था, ऊपर से पैर नज़र आ रहे थे। सोचिए, ऊपर से पैर नज़र आ रहे थे और वो चारों तरफ देख रहे थे, और अगर नीचे की तरफ वो देख लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है नज़र आ जाते हैं उनको। तो क्या सिचुएशन होगी अगर इस तरीके से हम देखें कि पुलिस जो होती है सड़क पे खड़ी होती है, तो हालत क्या कितनी खराब हो जाती है कि लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, वो तो बिल्कुल जान पर उसने वाला वैसे वाला मामला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि उन दो लोगों के बारे में तुम क्या कहते हो जिनमें तीसरा अल्लाह है? इत्मीनान देखिए कि सर पर जो है वो दुश्मन खड़ा है, और इत्मीनान क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, अगर कुछ हो भी गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वापस जिंदा कर सकता है। अगर कुछ हो भी गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस जख्म को तभी मिली सेकंड में भी जो है ठीक कर सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो क्या करता, उन सबको वही जो है गारत कर देता। तो ये है तवक्कुल, ये इत्मीनान है। ये क्या है कि ये इत्मीनान है, तवक्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसी तरीके से, इसकी जो रिवायत है फिर हमें सूरह तौबा से मिलती है, अगर तुम महबूब की मदद ना करो तो बेशक अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। जब काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ, काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ, सिर्फ दो जान से, तो जब वो दोनों गार में थे, जब अपने यार से फरमाते थे गम न खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह ने उस पर अपना सकीना उतारा और उन फौजों से उसकी मदद की जो तुमने ना देखी, और काफिरों की बात नीचे डाली। अल्लाह ही काबुल बाला, अल्लाह ही कबूल बाला है, और अल्लाह ही गालिब हिकमत वाला है। तो देखो यहाँ क्या आया, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 40 है। क्या कहा कि गम ना खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह ने उस पर अपना सकीना उतारा और उन फौजों से उसकी मदद की जो तुमने ना देखी। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी फौजें भेजी कि उनकी नजर ही नहीं पड़ पाई।
वो देख ही नहीं पाए बहनों। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन करने का तरीका ये है। मुबीन अप्पी बोलती है ना कि आप ये सोचते हैं कि साढ़े 3 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है, ढाई घंटे की नींद है। आप यकीन तो करके देखिए, आप क्या करें, आप रास्ते में तो निकल के देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस ढाई घंटे की नींद को 5 घंटे की नींद ना बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस 3 घंटे की नींद को 6 घंटे की नींद ना बना दे, एकदम फ्रेश होकर उठेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखते हैं कि मेरा बंदा, मेरी बंदी मेरी राह में थकी हुई है, उसकी बॉडी जवाब दे रही है, वो सुबह से काम में लगा है, वो सुबह से काम में लगी है और मेरे काम में लगी है, मेरे काम में लगी है, तो उसकी नींद अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक़्त रोक देगा आपके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस 3 घंटे को 6 घंटा बना देगा। 6 घंटा, 8 घंटे की नींद पूरी करके उठेंगे। और क्या कहा यहाँ पर कि उस फ़ौज से हमने मदद की जो तुमने देखी भी नहीं। कई बार कैसा होता है और ये तो पता है ना, जो गार्डियन एंजल्स होते हैं, तो कभी कोई टेबल्स भी सामने आती है तो टेबल अपने आप ही उस पर हाथ लग के वो अलग चली जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरीके से मदद करते हैं। तो आप बताइए, भरोसा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर है तो ऐसी चीज़ें आके मदद करेंगी जिनको आप देख भी नहीं सकते। सीढ़ियों से गिर रहे हो और कौन-सी दुआ पढ़ के चलें? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उस दिन 2 फरिश्ते आपको बचा रहे होते हैं। सीढ़ियों से गिरे, पैर फिसला, फिर खड़े हो गए, कि जैसे किसी ने दबोच लिया हो। ऐसी चीज़ों से मदद अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं कि आपने देखी, आप देखेंगे नहीं और आपकी मदद हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह से सही बुखारी की 4135 ये एक हदीस है। उसके बारे में जो है इंशाल्लाह बात करेंगे। ये वो हदीस है, ये मुझे लगता है काफ़ी सारी बहनों ने सुनी भी होगी। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा से खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतराफ नजद व ग़ज़वा के लिए गए थे। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए तो वो भी वापस हुए। कैलुल्लाह का वक़्त, कैलुल्लाह बोलते हैं दोपहर के खाने की नींद को, एक वादी में आया जहाँ बबूल के दरख्त बहुत थे। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर गए और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा दरख्तों के साए के लिए पूरी वादी में फैल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बबूल के दरख्त के नीचे क़याम फरमाया और अपनी तलवार उस दरख्त पर लटका दी। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि अभी थोड़ी देर हमें सोए हुए हुई थी कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तो तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पुकारा। हम जब खिदमत में हाजिर हुए तो आपके पास एक बदवी बैठा था, एक आदमी था बेसिकली बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स ने मेरी तलवार मुझी पर खींच ली थी। मैं उस वक्त सोया हुआ था। मेरी आंख खुली तो मेरी नंगी तलवार उसके हाथ में थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें मेरे हाथ से आज कौन बचाएगा? मैंने कहा, अल्लाह। अब देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बैठा हुआ है कहा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई सज़ा नहीं दी बहनों, उसको कोई सज़ा नहीं दी। तो क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो रहे थे तो उसने देखा कि अकेले हैं और जाकर जो है मैं सवार हो जाता हूँ, और तलवार निकाली और बोला कि बताओ अब ये सर कटने का मामला है बहनों, ठीक है? जान जाने का मामला है। हम सिर्फ़ किस चीज़ से डरते हैं कि हमारा कोई भेद ना खुल जाए, हम किस चीज़ से डरते हैं कि हम फ़ेल ना हो जाएँ, हम किस चीज़ से डरते हैं कि हमारी दोस्ती ना टूट जाए, हम किस चीज़ से डरते हैं कि हम फ़ेल ना हो जाएँ। हाँ, किसी एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाए, किसी कॉन्टेस्ट में फ़ेल ना हो जाए, किसी कॉन्टेस्ट में क्या हो जाए कि हम सेकंड ना आ जाएँ। ये सिर्फ़ वो डर है जो सिर्फ़ दुनियावी डर है, सोचो जान, बिल्कुल जान जाने का मामला है। तो उसने कहा, कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कैन यू इमेजिन द रिलीफ, इत्मीनान जो था उनको, कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना चाहे। कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना चाहे। तो हमारे लिए क्या है इसके अंदर सबक? हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तवक्कुल कीजिए अल्लाह पर। नूह अलैहिस्सलाम ने तवक्कुल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल ऐसा था। इसी तरीके से बाकी अंबियाओं का तवक्कुल ऐसा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बोला कि तवक्कुल करो, तो तवक्कुल हमें ज़िंदगी में करना कहाँ है? कोई भी मेरे ऊपर परेशानी आ गई,
तो क्या होना चाहिए? पूरा दिल के साथ कि हाँ, कोई ना कोई जो है इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खैर होगी। देखिए बहनों, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि हाँ, ठीक है जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, है ना? एक ये होता है। एक होता है जैसी अल्लाह की मर्ज़ी। ठीक? दोनों ही बातें एक जैसी हैं, एक ही लफ्ज़ हैं, लेकिन तरीका उसको फ़ील करना बहुत अलग-अलग है। पूरे दिल से जो है हमें क्या करना है, उससे फ़ायदे भी हैं, तवक्कुल करने के फ़ायदे हैं इंशाअल्लाह। क्या करेंगे? वो भी पढ़ेंगे उसके बारे में। इसी तरीके से क्या है, सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 63 में, तुम फरमाओ, कौन है जो तुम्हें निजात देता है जंगल और दरिया की आफतों से, जिसे पुकारते हो गिड़गिड़ाकर और आहिस्ता के, अगर वो हमें उससे बचावे तो हम जरूर एहसान मांगेंगे। तो मुशरिक क्या करते थे बहनों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आप इनसे बोलिए कि जब ये पानी में होते हैं और जंगल में जाते हैं तो किसे पुकारते हैं? जब इन लोगों को डर लगता था ना तो अल्लाह को पुकारते थे। जब इन लोगों को डर लगता था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते थे जंगल में कि अल्लाह बचा लीजिए, और जैसे ही बच जाते थे फिर क्या करते थे, फिर अपनी मनमानी करने लग जाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में ये कह रहे हैं कि आप उनसे बोलिए, ए नबी आप उनसे बोलिए, आप फरमाइए कि कौन है जो तुम्हें निजात देता है जंगल में और दरिया की आफतों से, जिसे तुम पुकारते हो गिड़गिड़ाकर, पानी में जाते हो, डूब रहे होते हो तो वहां अल्लाह अल्लाह करते हो, फिर मैं बचा लेता हूँ, तो फिर तुम ऐसी सोचिए। आप खुद सोचिए कि किसी की बहुत ज़रूरत में जब वो गिड़गिड़ा कर आ रहा था, आपने मदद की और फिर वो नज़रें फेर जाए, तो हमें क्या फ़ील होता है? हम तो इंसान हैं, हमारी फीलिंग्स तो कुछ भी नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फिर ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कितनी मोहब्बत करता है हमसे। और अल्लाह हर बार बचाता है इन लोगों को। हर बार क्या करता है, जंगल में किसी के कोई किसी खतरे में होते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचा लेते। फिर पानी में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बचा लेते, और क्या कहते, और आहिस्ता, अगर वो हम इससे बचावे तो हम ज़रूर एहसान मानेंगे। कहते थे कि अगर इससे बचा लिया तो हम ईमान ले आएँगे, अगर इससे बचा लिया तो हम एहसान मानेंगे, लेकिन वो नहीं मानते थे। बिल्कुल नहीं मानते थे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये हमारे लिए कोई चीज़ है, ये हमें सीखने वाली चीज़ है कि मुशरिक जो है जब किसमें है, परेशानी में है तो अल्लाह से मदद माँग रहे हैं, और आज का मुसलमान नॉर्मली अल्लाह से मदद माँग रहा है, लेकिन जब परेशानी हो जाती है तो कहीं भी चला जाता है। जो बन पड़े वो कर लेता है। जो मुशरिक है वो जब परेशानी आ रही है उस पे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांग रहा है, अल्लाह पर तवक्कुल रख रहा है, अल्लाह पर यकीन कर रहा है, हालांकि वो पूरे टाइम में कुछ भी कर रहा है। लेकिन आज का मुसलमान कैसा है कि पूरे टाइम में नमाजें पढ़ेगा, और जहां जैसी मुसीबत आई और किसी ने कहा ये काम कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो सारे कामों में लग जाते हैं। तो बताइए कितनी जो है शर्मनाक बात है ये हमारे लिए कि मुसीबतों में मुशरिक ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारा, अल्लाह को पुकारा, और क्या बोलते हैं, आज जो मुसलमान है, जो मुसल्ले ईमान है, जो मोमिन है, वो क्या कर रहा है, मुसीबत में किसी और को पुकारने लगता है और पूरे टाइम नमाज पढ़ता है। अल्लाह ने तो कहा कि मुझ पर तवक्कुल करो, मुझ पर तवक्कुल करो, और मैं मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करे उसका मकाम इस दुनिया में अगर नहीं भी तो आखिरत में, हाँ, सुभान अल्लाह, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना कोई आँख उसको इमेजिन कर सकती है, और ना कोई कान, ना कोई दिमाग जो है उसको सोच सकता है। तो क्या करना है, जब भी मुसीबत हो तो अल्लाह की तरफ जो है रुजू हो जाए। कोई भी परेशानी हो तो अल्लाह की तरफ दौड़ पड़े। और मान लीजिए आपने कोशिश की है और उसका नतीजा अच्छा नहीं आया, तो भी अल्लाह की तरफ, क्योंकि हमारा काम क्या है, एक्सेप्ट करना जो भी रिजल्ट आया है। कुछ भी हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही तरफ से हुआ है, ये है तवक्कुल। इसी तरीके से अब ये है कि तवक्कुल के जो है मायने बिल्कुल भी ये नहीं है कि मतलब इंसान बैठा रहे। तवक्कुल के मायने बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इंसान बैठा रहे घर में। तवक्कुल के मायने क्या था, एंड रिजल्ट, जो रिजल्ट है, काम जितना आपके बस का है आपने वो किया, जो एंड रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में, जो रिजल्ट है वो अल्लाह के हाथ में, इतना आपको जानना है। ठीक। तो तवक्कुल के मायने ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोशिश ना करें। ठीक। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्या होता कि जंगे बदर नहीं हो रही होती, ठीक है, जंग ही नहीं होती फिर। जंगे बदर में क्या थी, तदबीर भी थी, यानी कि स्ट्रैटेजी भी थी, प्लानिंग भी थी, अमल भी था, कोशिश भी थी, तब अल्लाह पर तवक्कुल का नतीजा, ठीक है, कि या अल्लाह
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह बचा लीजिए, अगर ये लोग जो हैं आज आ गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो ये था बस। और कितने लोग थे? 313, 312, बस सिर्फ़ इतने लोग थे। और बाकी के लोग हज़ारों, सैकड़ों की तादाद में थे। तो ये है बेसिकली एंड रिजल्ट पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल। भरोसा किस पर करना है? रिजल्ट पर भरोसा करना है कि जो रिजल्ट है वो मेरी बेहतराई के लिए है। अब चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, दुनिया की उससे नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हमेशा जो है उसको पॉजिटिव ही जो है आपके लिए बनाकर भेजेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर सिर्फ तवक्कुल का मायने ये होता कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहो, कुछ नहीं करते, तो जंगे बदर की तैयारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना करते। इसीलिए जो है ये हदीस आई। तो तदबीर किसे बोलते हैं? बेसिकली स्ट्रैटेजी। ठीक, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वॉर इज अ डिसेप्शन, यानी कि जंग एक धोखा है। वॉर इज अ डिसेप्शन। वो किस किस कंटेक्स्ट में ये चीज आई थी कि जब प्लानिंग की गई, प्लॉटिंग की गई किसकी? जंग के लिए। तो स्ट्रैटेजी अपनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किस चीज के लिए बैठे? खुतबे के लिए बैठे फजर पढ़ के, तो कहा नॉर्थ जाएंगे हम। और जब सुबह जो है मतलब जब सुबह रोशनी हो गई तो कहा अब हम साउथ की तरफ चलेंगे। ठीक, क्या कहा? कि हम साउथ की तरफ चलेंगे। फिर कहा कि इस दिशा में जाना है, दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई दुश्मन ने सुना भी होगा फजर में, तो नॉर्थ सुनकर जो है हमारे साथ हम वो क्या करेगा? साउथ में नहीं जाएगा। तो कोशिश, अकल लड़ाई, अकल लड़ाई गई। फिर जो है क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है एंड रिजल्ट जो था वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में था। और फिर अल्लाह ने क्या किया था? जंगे बदर में फरिश्ते भेजे थे। अल्लाह ने अभी कहा पिछले वाले उसमें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी फौजों से मदद भेजते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो आप देख भी नहीं पाते मैंने। ऐसी फौजों से जो है मदद भेजते हैं। अकल लड़ाई, ठीक है, यानी कि तदबीर है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग है, फिर अमल है। अमल क्या है? कि सारी चीजों को एक्शन। अमल क्या होता है? एक्शन करना होता है ना। यानी कि हर चीज की क्या करना है? तीर अंदाजे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि खजूर की टहनी तोड़ कर दी कि जिसके पास तलवार नहीं है तुम इससे लड़ लेना। तो हर चीज है। फिर कोशिश, सर्दियों की रात थी, कोशिश यानी कि घर से निकलना, ट्राई करना उसके बाद। तो अब हमारे लिए क्या है इसके अंदर? कि तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि मैं घर में बैठी रहूं और मैं कहूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है पहुंचा देंगे मुझको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है पहुंचा देंगे मुझको। दुकान में हमने क्या किया? हमने दुकान खोली, हमने सब सामान लेकर आया। अब कस्टमर दिलाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम है। इसी तरीके से क्या किया? पढ़ लिया, पेपर के लिए एग्जाम में गए, एग्जाम दे दिया। अब रिजल्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलाएंगे। एंड रिजल्ट ना, रिजल्ट और किसी चीज का फैसला, किसी वाकये का फैसला और किसी चीज की जो नतीजे होते हैं वो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर है। हर चीज का जो है वो करने वाला है। वो तवक्कुल है। बच्चों को तालीम दे दी, बच्चों की तरबियत कर दी। अब वो फर्माबरदार हो ना हो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। और अगर वो फर्माबरदार जो है नहीं होता है, अगर वो फर्माबरदार नहीं होता है, तो वो आपके लिए एक टेस्ट हो सकता है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्लान है, वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके से जो है बहुत ज़्यादा सुनन सुनन इब्न माजा की जो है एक हदीस है। उसमें जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर ये शायद मैं डालना भूल गई हूँ इसके अंदर। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल कर लो, उसके ऊपर ये हदीस नंबर 3377 है। 3377 सुनन इब्ने माजा की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर अगर तुम ऐसा तवक्कुल कर लो जैसे कि उस पर क्या है? तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें उस तरीके से रिज़्क अता फरमाएगा जैसे कि वो परिंदों को अता फरमाता है कि वो सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम को उनके क्या है? पेट भरे हुए होते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब इस हदीस का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जिस तरीके से फरिश्तों को मिलता है
क्या बोलते हैं उस तरीके से हमको जिनको कि परिंदों को मिलता है उस तरीके से जो है हमें भी मिलेगा। यहाँ जो है परिंदों के लिए कहा परिंदे निकलते हैं अपने घोंसलों से क्योंकि उनकी कोशिश, उनका अमल, उनकी स्ट्रैटेजी वही है कि उड़ना है, उन्हें अमल करना है और कोशिश करनी है। ये नहीं कहा कि मतलब जो भी है परिंदों को घोंसले में बैठे-बैठे देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्या कहा कि अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसा कि उस पर अगर हर एक इंसान अल्लाह पर ऐसे तवक्कुल कर ले जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह से रिज़्क उसे देता है, जैसे कि वो जो है चिड़ियों को देता है, परिंदों को देता है कि वो सुबह अपने घर से निकलते हैं खाली पेट और शाम को उनके पेट भरे हुए होते हैं। तो ये कहा कि अपने घोंसलों से निकलते हैं, यानी कि कोशिश भी ज़रूरी है। और बेशक जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करता है तो ऐसे मौज़े होते हैं बहनों, वहाँ से वो अता करता है जहाँ से सोचा भी नहीं होता। आपका जो दिमाग है वो सोच ही नहीं पाया होगा उस चीज़ को कभी, गुमान ही नहीं किया होगा। तवक्कुल के मायने है निकलो, खोजो, कोशिश करो, अमल करो, अब जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। उस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हुद में आयत नंबर 6 में फरमाते हैं, और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं, कोई जानवर ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर ना हो, और जानता है और जानता है कि कहाँ ठहरेगा और कहाँ सुपुर्द होगा। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाह, साफ बयान, सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर बेसिकली जो है एक जानवर का ज़िक्र है तो वो उसको भी देता है कि जो रेंग के चलता है, वो उसको भी देता है कि जो ठहरा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखो ये भी जानता है ना, मान लीजिए जैसे माइग्रेशन होता है ना, जो बतख होती है इस पोल से उड़ के दूसरे पोल पे जाती है क्योंकि वहां सर्दियां हो जाती हैं और अपने अंडे बर्फ में दबा कर चली जाती है ना, माइग्रेट करती है ना इधर से उधर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये भी पता है कि वो बतख इस टाइम कहाँ होगी और उसको वही खाना पहुंचाना जो उसकी बॉडी के लिए सूटेबल है। ये है तवक्कुल। तो परिंदों को तो नहीं होता कि भाई उनका बैंक बैलेंस हो और मैं बचा के रख लूं और मैं सब कुछ करके रख लूं। परिंदों का तो सब कुछ खाली होता है, उनके पास कोई बैंक बैलेंस, कोई अकाउंट तो है नहीं। सुबह को निकलते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, शाम को पेट जो है उनका भरकर भेज देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या मैं ऊँट को, अब ये क्या है कि तवक्कुल का उल्टा मतलब नहीं लेना है, जैसे कि अभी जो बताई थी कि परिंदों की तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से परिंदों को देता है कि सुबह को निकलते हैं और शाम को जो है पेट भर के निकलते हैं, इसी तरीके से क्या करना है कि गलत मायने नहीं लेने आपको तवक्कुल के। इसी तरीके से क्या करना है, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या मैं ऊँट को पहले बांधूं फिर अल्लाह पर तवक्कल करूं या छोड़ दूं फिर तवक्कल करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बांधो फिर तवक्कुल करो। ठीक है। उमर व बिन अल फलास कहते हैं, यहया बिन सईद अल कतान ने कहा कि हमारे नजदीक यह हदीस मुनकिर है। इमाम तिरमिजी कहते हैं कि यह हदीस अनस की रिवायत है से गरीब है। बेसिकली जो है इसके अंदर क्या है कि जामिया तिर्मिज़ी की ये रिवायत है। इसमें ये है कि एक इंसान ने, देखिए अब तवक्कुल का गलत मतलब कैसे हो गया कि ऊँट को खुला छोड़ दिया और अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ऊँट को पहले बाँधो और फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करो। यानी कि तदबीर, कोशिश, उसके बाद अमल, फिर उसके बाद जो रिजल्ट है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। अब वो ऊँट कहीं भी गया होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कदर है, वो ऊँट वहीं खड़ा होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पूरी तरीके से यकीन है। एंड रिजल्ट पर बेसिकली क्या है, तवक्कुल उसको कहते हैं जो कि रिजल्ट का नतीजे पर और किस चीज पर, किसी भी उसके फैसले पर क्या करना, यकीन करना, भरोसा करना और खुद को उसी चीज के हवाले कर देना और अपने दिमाग को जो है बिल्कुल से एक्सेप्टेंस में डाल दें। क्योंकि आज साइंस भी कहता है कि एक्सेप्टेंस इज द की फॉर अ हैप्पी लाइफ। एक्सेप्टेंस क्या हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो लेवल्स होते हैं तवक्कुल के कुछ। लेवल्स में क्या है, सबसे पहला जो है लेवल है वो क्या है, तौहीद। तौहीद जो है तवक्कुल का बेसिस है, ठीक है? यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है,
काफ़ी है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से होती है और उसी के हुक्म से क्या होती है, चलती-फिरती या उड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहला लेवल है तवक्कुल का, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी बहनें, जितने भी मोमिन हैं, हम सब उस लेवल पर हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, काफ़ी है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ उसी की मर्ज़ी से होती है और उसी के हुक्म से चलती-फिरती और उड़ती है। उसी तरीके से सेकंड लेवल पर देखेंगे क्या है, एवरी मैटर्स हैज़ कॉज़ एंड मीन्स, यानी कि इसका हम किस तरीके से एग्जाम्पल लेंगे कि हर ताले की जो होती है एक चाबी होती है, यानी कि अगर जो है आपको जो है ताला खोलना है तो चाबी लानी ही पड़ेगी। मान लीजिए चाबी छुपी हुई है किसी जगह तो चाबी ढूंढनी ही पड़ेगी। किसी भी उसका जो है कॉज, यानी कि क्या होता है, रीजन है, किसी भी चीज को खुलने का रीजन है, किसी भी चीज के होने का रीजन है। कोई भी चीज गलत हुई है उसके होने का रीजन है, कोई भी चीज गलत हुई है उसके होने का रीजन है, और कोई भी चीज सही हुई है उसके होने का रीजन है। कोई चीज अच्छी होनी थी बुरी हो गई उसका भी रीजन है, और कोई चीज बुरी होनी थी अच्छी हो गई उसका भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो है रीजन है। मीन्स क्या हुआ, अचीविंग समथिंग, यानी कि ताला खोलना और उस चीज को पाना, यानी कि हमें क्या रहना है, हमें एक्टिव रहना है, चाबी ढूंढने के लिए एक्टिव रहना है। शुड डू दैट, जो कि हमें वो चीज करनी है, वी शुड डू दैट, जो कि हर वो चीज करनी है जो कि हमारी कैपेबिलिटी में हो, यानी कि जिस चीज के हम लायक हैं हर वो चीज करनी है। फिर वो ताला खुलता है, नहीं खुलता है, और खुलेगा जब तवक्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो गैब से मदद भेजते हैं ना। तो कैसा वो जो होगा, हम क्या करते हैं, हम इस लेवल पर आए। दूसरे लेवल क्या होता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई क्या है, हर चीज से कोई चीज मिलती है, और हर चीज जो होता है वो किसी चीज की वजह से होती है, यानी कि हर, फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर गलत इंसान आपकी जिंदगी में आता है तो उसका भी रीजन होता है। उस रीजन से आपने क्या सीखा, उस रीजन से जो है आप सीखते हैं कि आइंदा से ऐसे इंसान से दूर रहना है। आइंदा से ऐसे इंसान आपकी आखिरत खराब कर सकते हैं, उस इंसान को अपने पास भी नहीं भटकने देना। तो किसी कोई चीज होती है तो उसका अचीवमेंट भी है, उससे क्या होता है, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। अब फ़ायदा, यानी कि चाबी ढूँढना और ताले में लगाना वो आपका काम है। चाबी ढूँढ के ताले में लगाना आपका काम है, ठीक है? और ताला खुलेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही मर्ज़ी है। ठीक उसी तरीके से जो है तीसरा है रिमेन फ़र्म, यानी कि क्या रहना, इस्तक़ामत रहना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ही तवक्कुल करना है। चीज़ें कितनी भी बुरी जा रही हों बहनों, कभी-कभी ऐसा होता है ना ज़िंदगी में कि ऐसा लगता है हर दरवाज़ा बंद हो रहा है, हर दरवाज़ा बंद हो रहा है। इधर गए यहाँ इन्होंने मना कर दिया, उधर गए वहाँ मना हो गया, इधर गए वहाँ मना हो गया। लगता है ना, कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, एंड दैट डे यू फील इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड ना कि अब तो कुछ है ही नहीं। नहीं, आपको करते रहना है, आपको करते रहना। हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहता हो, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ रखी हो कि ये 3 दिन मेहनत करेगा तो इसको मैं ये चीज़ दूँगा। और ये 2 दिन मेहनत करेगा तो इसको मैं ये दूँगा। तो आप जो है वो 3 दिन मेहनत कर लें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो दे दें। पर अगर आप फ़र्म नहीं हैं, अगर आप जो है क्या है उस चीज़ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, वो तीसरे दूसरे दिन में ही आपने छोड़ दिया, और तीसरे दिन तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या करना था, आपको आज़माना था, और आप जो है उस चीज़ पर क्या हुए, नहीं उस चीज़ को पा पाए। ठीक? अब इसी तरीके से फोर्थ वाला ये मैंने बता भी दिया है कि पूरे दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर को का भरोसा करें। देखिए, इसमें अब ये चीज़ हो गई कि हमारे साथ जब भी कोई गलत चीज़ होती है ना, मान लीजिए कितने लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ? तो कहते हैं कि अरे ऐसा हो गया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, एक एक ये होता है बोलने का तरीका। तो दैट मीन्स कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको बोला गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है हर चीज़ में। आप इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि आप सैटिस्फाइड हो उस कंडीशन से, क्योंकि आपको भरोसा है कि अल्लाह ने जो वो कंडीशन की है वही सही है, क्योंकि आप यकीन रखते हो कि वो जो चीज़ हुई है वो बुरी चीज़ भी जो है ना? हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें हमें बताया गया है कि हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। लेकिन एक इंसान के बोलने का तरीका ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है अच्छी चीज़ करेंगे। अब देखिए, ये दोनों चीज़ें एक ही है, और दोनों के बोलने का तरीका, दोनों के सोचने का तरीका और दोनों को फ़ील करने का तरीका। तो फोर्थ लेवल क्या है?
ये हाईएस्ट लेवल होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो है भरोसा रखने का। तवक्कुल की क्या है हाईएस्ट फॉर्म जो होती है वो यही होती है कि पूरे तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करें। पैर में चोट लगी तो भी अल्लाह पर भरोसा, ठीक है? कुछ अच्छा मिला तो भी अल्लाह पर भरोसा, कुछ अच्छा मिलकर छिन गया तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जो है यकीन रखना है, तवक्कुल रखना है। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे फ़ायदे क्या हैं इसके? आपका दिल मज़बूत होगा। मज़बूत किस चीज़ में होगा? मान लीजिए कोई भी चीज़, कई लोग ऐसे होते हैं ना कमज़ोर दिल के होते हैं और कोई भी जो है सदमा ले नहीं पाते हैं। तो जब आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन होगा तो आपका दिल मज़बूत हो जाएगा कि इसका कोई तो रीज़न है और इससे मुझे कुछ सीखना है। दिल की मज़बूती हो गई एक तो। फिर दूसरा क्या है, परेशानियों को फ़ेस करना आपको आएगा। परेशानियाँ किस तरीके से फेस करेंगे आप? आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से परेशानी, और आपको ये भी पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी जान पर जो है ज़ुल्म नहीं करता। तो ये मतलब मेरे साथ जो हो रहा है यानी कि इसके मैं काबिल हूँ, तो मैं परेशानियों का मुकाबला कर लूँगा। कुछ लोग भागते हैं ना परेशानियों से, तो आपको अगर तवक्कुल होगा तो परेशानियों का मुकाबला कर लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या होगा, कनेक्शन बनेगा आपका। अल्लाह से क्या बढ़ेगा, खुशू बढ़ेगा आपका ना, ख़ाशीन आप हो जाएँगे। दुनिया और आख़िरत की अच्छाई आपको मिलेगी अल्लाह से कनेक्शन होने पे। आप क्या हो जाओगे, एरोगेंस फ्री हो जाओगे। एरोगेंस फ्री कैसे हो जाओगे कि ये चीज़ मैंने कोशिश की थी और मेरी ही वज़ह से मुझको मिली है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में ही एंड रिज़ल्ट है, तो एरोगेंस हमारे अंदर कभी नहीं आएगा। डिप्रेशन फ्री कैसे हो जाएँगे कि कोई कोशिश की थी और उसमें फेल हो गए, तो हमें ये पता है कि जो रिज़ल्ट है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी थी, तो हम डिप्रेस्ड भी नहीं होंगे कि मेरी कमी से, मेरी बुराई की वज़ह से ये जो हो गया। एंग्ज़ायटी फ्री किस तरीके से हो गए हम कि अब क्या होने वाला है? अब क्या होगा? मुझे तो पता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये है कि एंड रिज़ल्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, तो क्या होगा, हम जो है एंग्ज़ायटी फ्री भी हो जाएँगे। तवक्कुल के बहुत सारे फ़ायदे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है एक आयत में जो है फ़रमाते हैं, क्या फ़रमाते हैं? सूरह अत-तलाक़ की आयत नंबर 3 है कि जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो वो उसके लिए काफ़ी है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है किसी के लिए काफ़ी है तो फिर उससे किसी की भी ज़रूरत नहीं है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सच्चा और पक्का जो है अपनी ज़ात पर तवक्कुल करने वाला बनाए और तवक्कुल का हकीकी मायने जो है हमको हम जान पाएँ, उस पर ऐसा तवक्कुल करें जैसे कि उसका हक है, ईमान पर जो है हमारा ख़ात्मा हो। कोई भी परेशानी आए तो हमें क्या हो, हमें पता रहे कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है तरफ से है, और जो है हम पूरी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करना सीख जाएँ और हमें ये पता रहे कि कुछ भी हो रहा है, क्या है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही तरफ से है। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।